How are you all doing? I guess you can give a thumbs up if you're doing great. I am doing great. Celebrating the festival with you all and with my loved ones, my family. No, our best friend Ganesha doesn't come so easily. You have to come and tell you all his story. So are you all ready with your boxes? See if you people are ready with your box and your stick. Are we all ready? Okay. So जो गणपति का त्योहार होता है ये बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है because of this corona this year they can't do it in the way they used to do it every year and गणपति जी बिना ढोल बिना ताशे के आते ही नहीं हैं. तो अगर आपको गणपति जी को बुलाना है to tell so that he should come and tell you his stories, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. So are you all ready with your boxes? We will imagine that we have a big drum in our hand and let's go. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. ढोल बजाना 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. ढोल बजाना गाना गाना गणपति बप्पा आ रहे हैं. One more time. ढोल बजाना गाना गाना गणपति बप्पा आ रहे हैं. किस पे आते हैं गणपति जी? अपने फेवरेट मूषक पे. मूषक जी ला रहे हैं. मूषक जी ला रहे हैं. गणपति बप्पा आ रहे हैं. ढोल बजाना गाना गाना गणपति बप्पा आ रहे हैं. और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पास बॉक्स नहीं है बट दैट्स ओके. यू कैन क्लैप ऑल्सो. ओके. शंख बजाना खुशियां मनाना गणपति बप्पा आ रहे हैं. शंख बजाना खुशियां मनाना गणपति बप्पा आ रहे हैं. मूषक जी ला रहे हैं. मूषक जी ला रहे हैं. गणपति बप्पा आ रहे हैं. लेकिन गणपति जी आएंगे तो आप कहाँ बिठाओगे उनको? आसन सजाना मोदक खिलाना. आसन सजाना मोदक खिलाना गणपति बप्पा आ रहे हैं. मूषक जी ला रहे हैं. मूषक जी ला रहे हैं. गणपति बप्पा आ रहे हैं. And this time you have to be louder if you want to call him. So are you all ready? Let's go. 1, 2, 3 and 4. गणपति बप्पा मोरया. मंगल मूर्ति मोरया. अरे गणपति जी आवाज आ रही है हमें? कोई साउंड आ रही है? सुनो ध्यान से. कुछ आ रहा है? सुनाई दे रहा है? मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा. कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है? तो गिव मी अ थम्स अप. And our friend Ganesha is all here. And you all can say hi Ganesha, how are you? Let's say hello Ganesha, how are you? Ganesha को hi करो. And you know what Ganesha is telling me?
All your Ma'am, fun very talks are interesting. looking so excited and so cute. And I am गणेश जी also के थोड़ा very excited. I'm also very excited to tell them all the story about myself. So are you all ready to Are you listen ready? to all Ganesha's stories? Just give a Yes, I'm thumbs up. Excellent. And now my little friend Ganesha is going to rest for a while I am telling you the story, okay? So let's start. First story that we will be doing today is about how Ganesha came to existence. गणपति जी महाराज का जन्म कैसे हुआ था इसके बारे में हम एक स्टोरी सुनेंगे. एंड लेट्स सी उसके अंदर और क्या क्या मिस्ट्री है उस स्टोरी के अंदर. ओके, सो आर यू ऑल रेडी? So in my first story, we have four main characters, okay? So the first character is, of course, our Ganpati ji. The second main character is Shiv Shankar Bhole. And the third character is Ma Parvati. And the fourth one is शिवजी जी की नंदी, जो शिवजी जी की सवारी है. So once upon a time, long ago, Mata Parvati and Shivji used to live on a big Kailash mountain, and it was freezing cold over there. And one day, Shivji came and he said to Mata Parvati, Parvati, all the people of the world want me to go there and help them. So I am going to the earth to help all my people. And I am taking all my fellow members also along with me. So you will be alone on the Mount Kailash. So be very careful since you are alone there. Mata Parvati, she smiled and she said, it's okay, my lord. You can go. I think all the people of the world need you more than me. शिव जी वहां से चले गए. उसके बाद जब माता पार्वती बैठी हुई थी, सोच रही थी कि क्या करूं, तो माता पार्वती ने सोचा कि शिव जी तो चले गए हैं, चलो मैं अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ. तो माता पार्वती नहाने जाने से पहले उन्होंने अच्छा सा चंदन का उपटन लगाया, और फिर जब उन्होंने वो उपटन लगाया, थोड़ी देर बाद उन्होंने वो उपटन उतार दिया. अब वो इतना सारा उपटन था जो उतरा हुआ था, तो उन्होंने सोचा हम रोज इस उपटन को वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट क्यों करें, लेट मी थिंक मैं क्या कर सकती हूँ. तो उन्होंने बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद माता पार्वती शी डिसाइडेड दैट आई विल मेक अ ब्यूटीफुल बॉय, अ स्टैचू ऑफ अ ब्यूटीफुल बॉय आउट ऑफ इट. और माता पार्वती ने उस उपटन से एक सुंदर सा छोटा सा बॉय बनाया. और फिर माता पार्वती ने फिर सोचा कि शिव जी के फॉलोअर्स तो बहुत सारे हैं, सब लोग उनकी बात सुनते हैं, लेकिन मेरा तो कोई फॉलोअर नहीं है. तो with my magical powers, let me give life in. तो what माता पार्वती did, उन्होंने एक मैजिक क्रिएट किया और उस छोटे से बॉय में लाइफ दे दी. एंड देन व्हेन दैट स्मॉल लिटिल बॉय, that's how a little Ganesha was born. And that little boy, she named him Ganesha. And when he was born just like you people. ऐसा नहीं है कि वो जब पैदा हुए थे तो उनके ऊपर एलिफेंट हेड था और इतनी बड़ी एलिफेंट ट्रंक थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. वो भी आप लोगों के जैसे ही पैदा हुए थे. एंड देन माता पार्वती शी सेड, गणपति जी,
she said that you will be my little son. So that little tiny little boy was really really happy. Wow! And he used to love Mata Parvati a lot. और फिर एक दिन दोबारा वही हुआ कि माता पार्वती को नहाने जाना था, तो उन्होंने गणेशा को कहा, गणेशा, I am going to take bath. Be very very careful that nobody enters. आजकल तो बहुत इजी है ना, जब मम्मा या पापा बाथ लेने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, अंदर से लॉक कर देते हैं so that nobody can come inside. But way back then ऐसा प्रोविजन ही नहीं था. So माता पार्वती ने अपने प्यारे से लिटिल गणपति जी से कहा कि you have to be very very careful that nobody should enter in my room. So Ganpati ji said, okay, I will be very very careful. You go and enjoy your bath. So Mata Parvati went, and our little Ganesha, as he was naughty from childhood, was roaming here and there outside the room. And finally, after so many years, who came back? Shivji came back, and he was really really angry that he was not able to meet his wife for such a long time. So he was really really angry, and he came and he said to that little boy, रास्ते से हट जाओ और मुझे अंदर जाने दो. So but our little Ganesh was very very firm. He said, नहीं, मेरी माता ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा. शिव जी को और जोर से गुस्सा आया. उन्होंने बोला, बालक, हट सामने से और द्वार छोड़, मुझे अंदर जाना है अपनी बीवी से मिलने. तो गणेशा ने कहा, नहीं, आप सुनिए मेरी बात, मेरी माता ने कहा है किसी को अंदर मत आने देना. तो शिव जी को और गुस्सा आया. शिव जी ने बोला, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, क्यों रोक रहे हो मेरा रास्ता. अगर तुम्हारी माता ने ये कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना, तो डेफिनेटली उन्होंने ये भी कहा होगा कि अगर शिव जी आएंगे, वो तो मेरे हस्बैंड है, उनको अंदर आने देना. तो गणपति जी ने कहा, नहीं, मेरी माता ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा. शिव जी को और जोर से गुस्सा आ गया. उन्होंने बोला, बालक, हट सामने से. लेकिन गणेशा बिल्कुल भी नहीं डरे. इतनी जोर जोर से शिव जी गुस्से से चिल्ला रहे थे, बट गणेशा फिर भी नहीं हटे. एंड फाइनली बहुत देर तक उनकी आर्ग्यूमेंट चली. शिव जी ने बोला, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाने दो. गणेशा ने बोला, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी माता ने कहा है किसी को अंदर मत आने देना. जब बहुत देर तक उनकी आर्ग्यूमेंट चलती रही, तो शिव जी को बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, और they ended up fighting with each other. Now imagine, शिव जी is such a powerful God, और वो इतने लंबे, उनके पास इतनी सारी मैजिकल पावर्स है. What will our little Ganesha do in front of Shivji? But he was not afraid. He said, ठीक है, आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, चलिए हम लड़ते हैं, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा. So then both of them had a fight. While they had a fight, you know what happened? Shivji was so powerful कि गणेशा गिर गए, और उनका जो हेड था वो भी गिर गया. और जब उनका वो हेड गिरा, तो वो जोर से चिल्लाए, माता पार्वती. जैसे आपको चोट लगती है तो आप क्या करते हो, आओ मम्मा करते हो ना, करके दिखाओ कैसे करते हो, आओ मम्मा. वैसे ही जो हमारे छोटे से गणपति जी थे, उन्होंने भी यही किया. जैसे ही उनका सिर धड़ से अलग होके गिरने लगा, जोर से आवाज आई, माता पार्वती प्लीज सेव मी. और धड़ जमीन पे गिर गया, सिर भी नीचे गिर गया.
और इतनी जोर की आवाज सुनकर माता पार्वती जल्दी जल्दी आई और उन्होंने आकर के देखा और बोला, ये क्या कर दिया आपने? ये तो छोटा सा बालक है ना, आपको उसके साथ में लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। शिव जी बोले, आई एम वेरी एंग्री विद दिस बॉय, ही वॉज नॉट लेटिंग मी इनसाइड। माता पार्वती ने कहा, बट वो तो बहुत ही छोटा सा बच्चा है, आपको सोचना चाहिए था। तो क्या हुआ अगर उसने आपकी बात नहीं मानी? उसने आपकी बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि मैंने उससे कहा था कि किसी को अंदर मत आने देना। And Mata Parvati was really upset. She said, I am not happy with your behavior. You should have not done it. And finally, you know what happened? Shivji realized that it was a mistake. So he said, I am really sorry, but I will fix it. But Mata Parvati, she was very upset and she was crying. What happened to my Ganesha? Oh my God, what will I do now? And then शिव जी ने अपने वाहन नंदी जी को बुलाया और कहा, जाओ जाकर ढूंढ कर आओ और जो भी पहला जानवर आपको मिले जिसका जो सिर है वो हम गणेशा की बॉडी पे लगा सके उसको लेके आ जाना। तो नंदी जी गई ढूंढने, दूर दूर तक ढूंढती रही, कुछ भी नहीं मिला। गणेशा का धड़ भी कहीं नहीं, सिर भी कहीं नहीं मिला। फाइनली जब वो ढूंढ कर बिल्कुल थकने ही वाली थी, तो क्या मिला उनको? एक बिग एलिफेंट मिला जो कि लेटा हुआ था। तो नंदी जी ने फौरन उसका धड़ और उसका सर अलग करा और उसका सर लेके वो शिवजी जी के पास चली गई। और जब वो सर लेकर के गए तो पता है आपको क्या हुआ? शिवजी जी ने फौरन उस सर को लेकर के और गणपति जी की बॉडी पे रखा। और फिर शिवजी जी के पास तो बहुत मैजिकल पावर्स थी, तो उन्होंने क्या करा? अपनी मैजिकल पावर से उन्होंने उसमें लाइफ डाल दी। एंड दैट्स हाउ आवर लिटिल गणेशा गॉट एन एलिफेंट हेड। बट you know what happened after that? Mata Parvati was still very sad. She said, I am not happy with you, Shivji. This is not the way. He was just a little boy and you are not supposed to hurt him. So then Shivji said, I am really sorry. I am trying to fix it and I hope I fixed it. Still, if you don't want to forgive me, we can do one more thing for Ganesha. और तब शिव जी ने गणपति जी को ये वरदान दिया कि he will be the god of wisdom. जितनी बुद्धि है उनके पास सब रहेगी, और जब भी कोई पूजा होगी, कोई हवन होगा या कोई भी अपने घर में कोई अच्छा काम करेगा, सबसे पहले किसकी पूजा करनी पड़ेगी? We have to pray to our little Ganesha. He will be the first one जिसकी की पूजा की जाएगी. So that's how now do you all know how come Ganesha got the elephant head? Give me a thumbs up if you understood. Very nice, excellent. Shravanya is giving it two thumbs up. Thank you, Shravanya. And now, wow, Vedant, that's your friend Ganesha. He's saying nice story. Oh, thank you, Ganesha. Thank you, Vedant. Okay. So now, let's listen to the next one. पहले मैं आप सबसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. क्या आप लोगों ने कभी भी कोई एलिफेंट देखा है जिसकी 1 टस्क होती है? Yes? गणेश
होती है, that's right. But गणेशा के अलावा have you ever seen even a single elephant जिसकी की 1 tusk होती है? I think 2 tusks होती हैं. Yes, ma'am. Yes, thank you. Now the next story is कि गणेशा, क्योंकि गणेशा के बॉडी पे तो शिवजी ने एलिफेंट का सिर लगा दिया था, तो 1 दांत कहाँ चला गया? सोचो, आप लोगों का दांत कौन ले जाता है? छोटा सा मूषक आके लेके चला जाता है ना आपका दांत, है ना, जब हो जाता है. So, but गणेशा का तो बेस्ट फ्रेंड था मूषक, तो गणेशा का टीथ तो मूषक ने नहीं लिया. So can you all think कि कैसे हुआ? सोचेंगे? चलो, I will help you and I will tell you a story. और उस स्टोरी के एंड में आपको पता चल जाएगा कि गणेशा एक दंत क्यों है. Okay? Are you all ready? You have to give me a thumbs up. Then only I will start. Okay. So, इस स्टोरी में हमारे पास 4 main characters हैं. कितने characters हैं? 4 main characters. So we have Saint Vedyas ji, we have Brahma ji in this story, and we have Narad Muni ji, Narayan, and we have our little friend Ganesha. You all can also do. Let's show it to me. How will you make little friend Ganesha? Little friend Ganesha. Excellent. Okay. So एक बार वेद व्यास जी बैठे हुए थे, अपनी तपस्या में बैठे हुए थे. वेद व्यास, अब आप पूछोगे आस्था मैम वेद व्यास जी कौन थे? हमें तो पता ही नहीं है. वेद व्यास जी वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल सेंट, बहुत सदियों तक तपस्या करते हैं और जिनके पास मैजिकल पावर्स भी होती है कुछ कुछ. तो उसी तरीके से वेद व्यास जी भी थे, and he was doing tapasya for so many years. So then what happened? Brahma ji came and Brahma ji asked Vedyas ji कि क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? तो वेदव्यास जी ने कहा हाँ जी, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा, बताइए क्या करना है. तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप पता है क्या, आपने महाभारत जो इतना बड़ा एपिक है हिंदू कल्चर का, वो महाभारत आपने अपनी 2 ब्यूटीफुल आईज से देखी है. और क्या आप इतनी सी मदद कर सकते हैं कि वो जो महाभारत है ना, आप प्लीज लिख दीजिए, ताकि जो बहुत सालों के बाद भी लोग उस ग्रंथ को पढ़ सके और महाभारत की टीचिंग सदियों तक चलती रहे. क्या हमने महाभारत देखी है? हमने तो ओरिजिनल नहीं देखी. हमने कैसे देखी है? हमने भी ऐसे ही देखी है. तो महाभारत उन्होंने बोला आप लिख दीजिए. तो वेद व्यास जी ने बोला ब्रह्मा जी मैं आपकी मदद बिल्कुल करूंगा, लेकिन एक बहुत मुश्किल है. तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्या मुश्किल है, बताइए, हम आपकी मुश्किल को सॉल्व करेंगे. तो वेद व्यास जी ने बोला कि मैं जब बात करूंगा या मैं जब बोलूंगा तो मैं बोल और लिख साथ में नहीं सकता. या तो मैं बोल सकता हूँ या तो मैं लिख सकता हूँ. तो मुझे तो कोई हेल्पर भी चाहिए ना जो कि लिख सके जब मैं बोलूं. तो तभी वहां पता है कौन आए? वहां आए नारद मुनि जी. नारायण 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 नारायण. और उन्होंने बोला अच्छा, तो आपको कोई ऐसा चाहिए जो कि जल्दी जल्दी उसको लिख सके. आई थिंक गणेशा इज द एप्ट चॉइस, क्योंकि गणेशा से अच्छी विजडम, अच्छी समझ किसी के पास भी नहीं है. तो हम क्या करते हैं, हम गणेशा को बुलाते हैं एंड वी कैन आस्क गणेशा इफ ही कैन हेल्प यू व्हाइल यू डिक्टेट एंड ही कैन राइट दैट महाभारत. तो ब्रह्मा जी ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है,
आपने तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी नारायण जी, थैंक यू सो मच। एंड देन वेद व्यास जी फिर से ध्यान में बैठे और इस बार पता है वो किसका ध्यान कर रहे थे? इस बार वो गणेशा का ध्यान कर रहे थे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गण गणपते नमः। और जब वो ध्यान कर रहे थे, दूसरी ओर हमारे गणेशा अपने मूषक के साथ खेल रहे थे। आप लोग भी खेल के दिखाओ गणेशा कैसे खेलते हैं। Are you able to hear the sound? और जब वेद व्यास जी तो ध्यान कर रहे थे गणेशा का और गणेशा अपने खेल में ही मस्त मगन थे। और जब बहुत समय तक वेद व्यास जी ने गणपति जी का ध्यान करते रहे तो फाइनली गणपति जी ने उनकी पुकार सुनी और गणपति जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, वेद व्यास जी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो वेद व्यास जी ने गणपति जी से बोला, बिल्कुल आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे एक टास्क दिया है। आई हैव टू राइट द कंप्लीट महाभारत। और या तो मैं बोल सकता हूँ या तो मैं लिख सकता हूँ, तो अब क्या करें? तो आप हमारी मदद कीजिए, मैं बोलूंगा और आप महाभारत लिखिए। तो गणपति जी ने बोला, गणपति जी ना सोचने लगे, जैसे आप लोग बहुत नॉटी हो ना, तो वो भी बहुत नॉटी थे, तो उनके दिमाग में कुछ एक नॉटी सा आइडिया आ रहा था। गणपति जी ने बोला, ठीक है वेद व्यास जी, मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं पूरा महाभारत लिखने में आपकी हेल्प करूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा, थैंक यू सो मच गणेशा, दैट विल बी रियली रियली नाइस। एंड फिर गणेशा ने बोला, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो वेद व्यास जी ने पूछा, क्या कंडीशन है गणेशा? तो गणेशा जी ने बोला कि जिस स्पीड से मैं लिखूंगा उसी स्पीड से आपको बोलते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, नो ब्रेक्स आर अलाउड। तो वेद व्यास जी सोचने लगे, अच्छा। फिर वेद व्यास जी ने बोला, ठीक है मुझे मंजूर है, मैं कंटिन्यूअसली बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाइएगा, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। तो गणेशा ने पूछा, आपकी क्या कंडीशन है? तो वेद व्यास जी ने बोला कि मैं तो जल्दी जल्दी बोलता जाऊंगा, लेकिन आप वही लिखोगे जो आपको समझ आएगा। तो गणेशा ने सोचा, अरे ये तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया, पहले समझना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा, बट दैट्स ओके। तो गणेशा ने बोला, दैट्स ओके, मैं आपकी कंडीशन पे अग्री करता हूँ, लेट्स स्टार्ट। और फिर उन्होंने महाभारत लिखना शुरू किया। एंड वेद व्यास जी kept speaking and Ganesha kept writing. But you know, Ved Vyas ji was also very, very clever. What he used to do, वो पता है क्या करते थे? जब उनको ब्रेक लेना होता था ना, तो वो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स बोलते थे जिसको कि समझने के लिए गणेशा को 2 मिनट लगते थे, और तभी तो गणेशा लिखते। तो तब तक जब तक कि गणेशा सोच रहे हैं, उसका मतलब समझ रहे हैं, तब तक वेद व्यास जी ब्रेक ले लेते थे। और ऐसे करते करते बहुत सारे दिन बीत गए, बहुत सारे साल बीत गए, गणेशा लिखते रहे, वेद व्यास जी बोलते रहे, एंड वेद व्यास जी बीच बीच में ब्रेक भी ले रहे थे। और लिखते लिखते एक दिन क्या हुआ, उनकी कलम टूट गई। अब गणेशा ने सोचा, अब मैं क्या करूं? मैंने तो वेद व्यास जी को प्रॉमिस किया है कि वो जब तक बोलते रहेंगे तब तक मैं लिखता रहूंगा। अब मेरा तो पेन ही टूट गया, अब क्या करूं? उन्होंने जल्दी से इधर उधर ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला जिससे कि वो लिख पाते। कोई कलम नहीं थी,
कोई डाली नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। तो फाइनली गणेशा ने पता है क्या करा, अपना एक दांत तोड़ दिया और उसकी कलम बनाकर उससे महाभारत लिखी। और जब फाइनली सदियों के बाद, काफी समय के बाद जब महाभारत लिख ली गई, तो वेद व्यास जी ने गणपति जी से कहा that I am really proud of you, क्योंकि अपना प्रॉमिस रखने के लिए आपने ये भी नहीं सोचा कि और आपने अपना दांत भी तोड़ दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपको कितनी दर्द होगी, कितनी तकलीफ होगी जब आपको दांत तोड़ेंगे। गणपति जी ने बोला प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है I will have to fulfill my promise. So Ganesha used to keep his promise all the time, and this is one lesson that Ganesha wants to give to all the fun thoughts, that we should keep our promise. तो अगर हम मम्मा को प्रॉमिस करते हैं कि मम्मा आज ये होमवर्क रहने तो मैं कल कर लूंगा या मैं कल कर लूंगी, then you have to keep your promise, okay? Because मम्मा अगर कोई प्रॉमिस करती हैं या पापा अगर कोई प्रॉमिस करते हैं, they keep to their promise. So you all have to promise Ganesha that you all will also keep your promises, okay? Give a thumbs up to Ganesha if you will keep to your promise, okay? Now everybody is giving a thumbs up to Ganesha, okay? So you can't go back on your words. All right, excellent. Ganesha is really happy to see that all my little friends have promised. Okay. अब आप सोचोगे कि आस्था मैम, आज की क्लास के लिए आपने हमें बोला था कि हमें क्ले लेके आनी है, बट क्ले से हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम क्ले से अपने बेस्ट फ्रेंड गणेशा बनाएंगे। So are you all ready with your clay? So let's quickly get our clay. Okay, Girika, Grishma are showing their clay boxes. Asta ma'am is also ready. So एक थोड़ा सा बिग बॉल बनाएंगे और एक बॉल उससे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, okay? Like this. This is the bigger ball and this is a smaller ball. So let's make two balls. Shravani, let's make two balls. और आज मम्मा हेल्प नहीं करने वाली हैं, बहुत थोड़ी सी हेल्प करेगी मम्मा, ओके? You have to do it on your own. It's so easy. We can do it on our own as well. So let's make two balls. और जो हमारी बिग वाली बॉल है, उस बिग वाली बॉल को हम अपने प्लेट पे रखेंगे, ओके? ऐसे अपने प्लेट पे रखेंगे, ओके? Let me see if my fun thoughts are giving me thumbs up that we've done till here. Thank you, Ayushman, for your thumbs up. Wow, all of them are making their Ganesha so nicely. Hi, Vishka, how are you? I'm fine. Ganpati Bappa? Moria! Very nice. Thank you, Daddy, for helping us. That's your little Ganesha, and this is my little Ganesha. Okay, so let's move to the next step. Beautiful eyes तो बनाई नहीं हमने, किसी ने भी नहीं बताया। आज तो मैम हमने सब बना लिया, लेकिन आइस तो बनाई नहीं। आइस कैसे बनाए बताओ? So I have a different color. I am using a brown color clay. आप same color के भी बना सकते हो, okay? Yay! So our Ganesha is ready. किस किस के गणेशा रेडी हो गए दिखाओ हुए? चलो लेट्स सी किस किस के रेडी हो गए। आस्था मैम का रेडी हो गया। एंड डू रिमेम्बर, कल की क्लास अभी बाकी है और कल भी हम हमारे बेस्ट फ्रेंड गणेशा की बेस्ट फेवरेट चीज बनाने वाले हैं। क्या है अभी बताया था किसी ने? क्या अच्छा लगता है?
गणेश मोदक। Excellent. तो कल हम अपने फ्रेंड गणेशा के लिए यम्मी यम्मी मोदक बनाने वाले हैं। तो तब तक अपने गणेशा को बहुत ध्यान से रखना, ओके? Now, are we all ready to welcome our Ganesha one more time? और ये हमारे गणेशा हैं, हमने खुद बनाए हैं। Wow, that's so amazing. So let's have the music. और गणपति जी कैसे आएंगे? वेलकम कैसे करते हैं हम? Everybody has to dance with the Ganesha. You can keep the Ganesha at one side, and everybody has to dance to welcome Ganesha. So let's leave our chairs. गणपति की जय जयकार। I hope you enjoyed Ganesha's stories, but I will see you all tomorrow, same time, same place, with my friend Ganesha. I hope all of you will come with your friend Ganesha, because we have more stories to tell. Ganesha has lots of stories to share with you, okay?